حیدرآباد لیے چلیں گے جہاں عمران خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس ایمنسٹی اسکیم کو میری اور میری پارٹی مسترد کرتی ہے۔ ہم آج کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 2018 کا ہم الیکشن جیتیں گے۔ جنہوں نے ایمنسٹی لی ہے سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا نا کہ جی سوال نہیں پوچھیں گے، ہم سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ جن کا جائز کا پیسہ ہے، جنہوں نے سورس آف انکم دکھا سکتے ہیں کہ کدھر سے انہوں نے جو بھی ان کی ایسٹس لیے باہر، وہ ان کو مل سکتی ہے ایمنسٹی اسکیم۔ لیکن جو یہ دکھا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا ہے، اس کا تو بڑا آسان چیز ہے۔ یہ اپنے بچوں کے نام کیا ہوا ہے، نواز نے اور اسحاق ڈار نے اپنے بچوں کے نام، میں ان کی مثال دے رہا ہوں، تو یہ تو کہیں گے جی وہ غیر سیاسی ہیں اور وہ ان کے نام پہ پیسہ لے آئیں گے واپس۔ ہم نے اس کو پوری طرح، ہم اس کرپشن کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم اس کے خلاف ہیں۔ دیکھیں معاشروں میں جب آپ ایک پیغام دیتے ہیں نا کہ کرائم ڈز ناٹ پے، جرم کا آپ کو نفع نہیں ہوگا، تو جرم تب نیچے جاتا ہے جب بار بار آپ ڈاکوؤں کو یہ سکیمز دے دیتے ہیں۔ تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ ایمانداری سے اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں وہ تو بیوقوف لوگ نکلے نا۔ آپ نے تو ان کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے سے زیادہ بیوقوف کوئی ہے نہیں، پہلے چوری کرو، ٹیکس نہ دو، کرپشن کرو، تھوڑی دیر کے بعد ایک سکیم آ جائے گی، سارا آپ کا کالا دھن سفید ہو جائے گا، بلیک کا پیسہ وائٹ ہو جائے گا۔ یہ کون سی دنیا دیتی ہے اتنی ایمنسٹی سکیمز؟ اور کتنی ایمنسٹی سکیم کامیاب ہوئی ہے؟ اور ضرورت کیا تھی 45 دن پہلے آپ کے جانے سے؟ تو میں پھر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کو یہ آپ دے رہے ہیں ایمنسٹی سکیم، ہم آ کے اس کو ریسنڈ کریں گے، ہم ساروں کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ ہاں، اور دو اور چیزیں۔ کندوز کے اندر امریکنوں نے بومنگ کر کے کچھ 100 سے اوپر بچوں کو مار دیا۔ اسی طرح انہوں نے بجوڑ میں، ڈاما ڈولا میں 2006 میں ایک ڈرون اٹیک نے مدرسے پہ بومنگ کی، 84 لوگ جس میں سے 62 بچے تھے۔ اس کی وجہ سے جو دہشت گردی اور خودکش حملے پاکستان میں بڑھے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ایک دم اس کا غصہ آیا اور اس کا رد عمل کیا ہوا؟ پاکستانی فوج کے اوپر حملے ہوئے، پاکستان کی شہریوں پہ حملے ہوئے، دہشت گردی بڑھ گئی۔ اگر یہ امریکن سمجھتے ہیں کہ یہ جو 16 سال سے یہ بمباری کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں اور اس سے یہ جنگ جیتی جائے گی، یہ اپنے لیے تو مشکل کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ افغانستان کے لوگوں کے اوپر مشکلیں بڑھا رہے ہیں، کیونکہ اس کا رد عمل آئے گا اور آپس میں مریں گے افغان۔ اور جب افغانستان میں سٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس کا اثر آتا ہے پاکستان پہ۔ ہم بھی بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ افغانستان میں سٹیبلٹی نہیں ہے، اور جو بھی ان کے ایکشن ہے اس سے انتشار بڑھ رہا ہے افغانستان میں، اس سے تو امن ہی نہیں ہوگا۔ تو ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اور آخر میں کشمیر کی میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اب کشمیر کے لوگوں پہ، یہ نریندر مودی کی جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، جو اس کا گجرات میں ریکارڈ ہے، جو اس نے قتل عام کروایا تھا مسلمانوں کو جب یہ چیف منسٹر تھا، جو خوف تھا وہ اب سب سامنے آ گیا۔ نریندر مودی کی جو پالیسی ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ ہندوستان میں بھی نظر آ رہی ہے اور اب وہ کشمیر میں نظر آ رہی ہے۔ کشمیر میں جس طرح کا ان کی فوج ظلم کر رہی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اٹھانا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے پرائم منسٹر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کے تو انہوں نے کپڑے ہی اتار لیے تھے امریکن ایئرپورٹ کے اوپر، اس کی حیثیت کیا ہونی ہے؟ تو ان لوگوں سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ سٹینڈ لے کشمیر کے لوگوں کے لیے؟ لیکن ساری پاکستان کی قوم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے آج۔ اور سندھ کا، میں سندھ پہ آتا ہوں، اس کا یہ ہے کہ باقی جگہ تو کرپشن ہے ہی ہے۔ پنجاب کے اندر، پنجاب میں بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو رہی ہے۔ سارا پنجاب کا تقریباً 57% بجٹ سارے پنجاب کا لاہور پہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ جو بجٹ ہے ان کا 635 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ فنڈ سالانہ پنجاب کا، یہ ایک آدمی خرچ کرتا ہے جس کا نام ہے شہباز شریف۔ اور جو کنسٹرکشن، سڑکیں بنانے کا جو بجٹ ہے کنسٹرکشن کا، وہ ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے اور اس کے بیٹے، شہباز کے بیٹے
4 कंपनियों अपनी इनकी कंपनियां हैं, पीछे इनके बेटे हैं, उनको सारा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। हम इसके ऊपर पूरा इंकशाफ कर रहे हैं। तो पंजाब में तो लूट मार है ही, लेकिन जो सिंध में लूट मार है, मेरे ख्याल में किसी भी दुनिया के मुल्क में इसकी मिसाल नहीं है। यहाँ तो पैसा बिल्कुल यानी स्कीम पे आता है, वो नीचे पहुँचता ही नहीं है ग्राउंड पे। ऊपर से लेके आसिफ जरदारी, उसकी बहन और सारे पैसा बना रहे हैं। जो मैंने देखा कल, इससे पहले भी मैंने देखा, पहली दफ़ा मैंने देखा है कि सिंध के लोग फैसला कर बैठे हैं कि वो इनसे अपनी जान छुड़ाएंगे। और ये मैंने पहली दफ़ा देखा है सिंध के लोगों के अंदर। आम रास्ते में हमने सड़कों पे देखा, लोग खड़े थे, लोग पहली दफ़ा फैसला कर बैठे हैं कि हम इस स्लोगन के ऊपर रोटी कपड़ा मकान, या अभी भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है और कश्मीर के लोग सिंध के लोगों का गला दबाया जा रहा है, वो लोग अब इस स्लोगन में नहीं आने वाले। मैं इंशाल्लाह हम पूरा जोर लगा रहे हैं। जो मैंने देखा है, कोई इस तब्दीली को रोक नहीं सकता। जो लोगों के अंदर हमने सोच देखी है, जो शऊर देखा है, इंशाल्लाह ये 2018 के अंदर ये जो लंबी अंधेरी रात है, ये इंशाल्लाह एक नई सुबह आने वाली है सिंध में, इंशाल्लाह। आप अदलिया की बात करते हैं, अदलिया के साथ खड़े होने की बात करते हैं, लेकिन जब कोई अदलिया आपको किसी केस में बुलाती है तो आप उस अदलिया में पेश नहीं होते। नंबर 1 बात उसकी क्या वजह। नंबर 2 बात ये कि पंजाब में करप्शन है, सिंध में करप्शन है, आप कह रहे हैं, हम मानते हैं, लेकिन क्या केपी में करप्शन नहीं है, उसकी क्या वजह है? देखिए, नंबर 3 बात सर ये कि एक एक करके करो, 3 4 मुझे भूल जाता है। पहला सवाल दोबारा, पहला सवाल। 1 साल मेरा सुप्रीम कोर्ट में गुजरा, एक एक चीज जो मेरा एसेट था सारा उन्होंने छानबीन की। जो एक 34 साल पहले मैंने असासा लिया था, उसकी मैंने 60 डॉक्यूमेंट्स दी सुप्रीम कोर्ट में। 1 साल में एक एक चीज के बाद अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया। आज पख्तूनख्वा का यह हाल है कि आप कोई इंडिपेंडेंट सर्वे करवा लें। 2013 में सबसे ज़्यादा करप्शन थी पख्तूनख्वा में, आज पिलडैट की सर्वे आई है, सबसे कम आज करप्शन है पख्तूनख्वा में। हम नैब को ये, यहाँ तो नैब डरते हैं ना सिंध में और वो पंजाब में कि नैब आ गई है। मैं दावत देता हूँ नैब को, किसी को आके पकड़ो। हम एक एक चीज़, उन्होंने हमारे इन्वेस्टिगेट कर रहे कई चीज़ें, हमारी बिलियन ट्री सुनामी, हेलीकॉप्टर में कहते हैं कि 20 लाख रुपया इमरान खान ने खर्च किया है। मैं दावत देता हूं कि एक एक चीज़ इन्वेस्टिगेट करो। और आपने कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट ने मैंने 1 साल जो और ऐसी डॉक्यूमेंट्स मांगी, मैं चैलेंज करता हूं, कोई दे ही नहीं सकता 40 साल पुरानी डॉक्यूमेंट्स। एक मिनट ठहर, कोई नहीं दे सकता ही। एक एक डॉक्यूमेंट दी, हालांकि मैं तो तब एक क्रिकेटर था, मुझे तो जायज़ है कि मैं तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर था ही नहीं, उसके बावजूद मैंने एक एक डॉक्यूमेंट उनको दी। आपने सिंध का दौरा किया, आपने सिंध का दौरा किया, क्या सूरत हाल देखी है आसिफ जरदारी में और सिंध में जो अब इलेक्शन आने वाले हैं 2018 में, एक अलायंस भी बनाए पीपल्स पार्टी के खिलाफ। क्या आप समझते हैं कि 2018 में तहरीक-ए-इंसाफ भारी अक्सरियत से कामयाब होगी? देखें, पहले तो मैंने जो देखा है, मैं देख रहा हूँ कि हर साल ये सिंध चारों सूबों के अंदर सब आज अंदरूनी सिंध, कराची का जो हाल है, जो कैपिटल है सिंध का, इतनी ज़्यादा गंदगी और ना पानी है, गंदगी के ढेर में कराची डूब रहा है। लेकिन जो यहाँ आते हैं, हैदराबाद में आप जाके देखें, बिल्कुल लावारिस है सिंध। क्योंकि सिंध में ये हुआ है कि जो लूट मार ऊपर से शुरू होती है, आसिफ जरदारी और उसकी बहन, उसके बाद नीचे सारे लगे हुए लूट मार पे, ना वो किसको रोक सकते हैं, किसी को भी नहीं रोक सकते। इसलिए जो यहाँ हालात हैं, सबसे ज़्यादा सिंध तब्दीली के लिए तैयार है आज, और इसलिए इंशाल्लाह हम जीतेंगे। जी, बारी बारी बहुत बड़ा शहर है और यहाँ से फ्लाइट्स नहीं चल रही, काकाने आजम की अपनी एयरलाइन है, वो आगे जा रही है, पीआईए पीछे जा रहा है। दूसरा, हल्का बंदी के हवाले से आप जो अग्रेडेशन दिखा रहे हैं, उस पर आपको क्या है?
टैक्स एमनेस्टी स्कीम में आप कह रहे हैं आप तहकीकात कराएंगे, हुकूमत में आके इसमें क्या आप जीआईटी बनाएंगे या फिर उसको हाँ जी आप मैं एक मिनट जवाब एक जवाब दे दूं ना। देखिए सबसे पहले तो एक इदारा बताएं इन्होंने ठीक किया। पीआईए का क्या हाल है आज, पीआईए का क्या हाल था 10 साल पहले। ये दोनों जरदारी ने पहले तबाह की, फिर मजीद इन्होंने की। पीआईए तबाह और ये एयर ब्लू अच्छा कर रही है। सारी दुनिया के अंदर एक कानून होता है जो पख्तूनख्वा में हमने कानून पास किया हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप इक़्तिदार में आके अपनी ज़ात को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, या सारे इक़्तिदार में आके ज़ात को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। सबसे आसान चीज़ है पैसा बनाना। मैं इक़्तिदार में आऊँ, मैं आपको कल अरबोपति बन के दिखा सकता हूँ। और तो छोड़े 4.5 साल में पख्तूनख्वा के अंदर मैं तो बड़ा आराम से बिज़नेस कर सकता था, पैसे बना सकता था, कोई मुश्किल ही नहीं है। बैंक ऑफ खैबर है, उसे कर्जे लो, माफ़ करवा लो, फैक्ट्री बनाओ, एक्साइज ना दो, टैक्स ना दो, सारी इंतज़ामिया आपकी हो। कौन, मुझे पता है सड़क इधर सड़क बननी है, पहले ज़मीन खरीद लूँ। आसान चीज़ थी पैसा बनाना इक़्तिदार में। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए। यही स्टील मिल 8 अरब रुपए का नफ़े में थी जब जरदारी ने लिया। इसने अपना वो एक लालजी था उसको फ्रंटमैन बना के इसने सारी स्टील मिल कंगाल की। और ये जिनकी स्टील मिल कहते हैं जी वहाँ चल रही है सऊदी अरेबिया में, यहाँ स्टील मिल बंद पड़ी है और अरबों का नुकसान कर बैठी है। वजह यह है कि इनके पास ना लोग हैं, ना लोग आना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते हैं। अच्छे लोग इनके पास हैं नहीं, इसलिए सारे इदारे तबाह हो गए। अच्छा एक मिनट 4.5 साल की आप बात करें, 4.5 साल तक आपने खुद भी तो सिंध को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया था। आपसे ज़्यादा कोई दौरे नहीं करता, रहमो करम पे सिंध की आवाम को छोड़ दिया था। तो आज 4.5 साल के बाद आप बोल रहे हैं कि सिंध तबाह हो चुकी है। इसका हम क्या मकसद समझे कि आपने खुद जानबूझ के सिंध पीपल्स पार्टी के हवाले की थी? देखें सब एक ज़िमनी अच्छा ज़िमनी ये सवाल है इससे रिलेटेड। कराची में जो आपको सपोर्ट मिली थी, आपको बताएं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।